plane, but this is the plane in which n bar is already perpendicular to the plane. ऐसा करने से ये जो AM है, this line AM is parallel to n bar. So you know, this AM bar is parallel to which one? Vector n bar. So for that purpose, yes, here now this AM bar is parallel to vector n bar. Atas here now, this AM is parallel to n bar and this AM is passing through the point A bar. जैसा कि अपने को पता है, कोई भी लाइन एक पॉइंट में से पास है और एक वेक्टर को पैरेलल है, तो लाइन का फॉर्म क्या है? R bar is equal to A bar plus lambda times B bar. ओके, उसी प्रकार से ये जो लाइन AM है, this is the line AM is passing through the point A bar and is parallel to vector n bar. तो लाइन AM का इक्वेशन ऑफ लाइन AM बोलो, इक्वेशन ऑफ लाइन AM is nothing but क्या होंगी? is R bar is equal to A bar. लाइन इसमें से पास है AM और वेक्टर n bar को क्या है? पैरेलल है. तो R bar is equal to A bar plus lambda times B bar. ये किसकी इक्वेशन है? AM की. It is the equation of line AM. Now, next term is that line AM की इक्वेशन निकालने के बाद उसके बाद हम निकालेंगे जैसे कि पॉइंट ये इंटरसेक्शन है. This is the intersection of किसका? line AM और plane का. Okay. This point M is nothing but it is the intersection of line AM and the plane. अब इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो हो गया इसका काम. Okay. Now we are talking about this point M. This point M is nothing but it is the intersection of the line AM and the plane R bar dot n bar is equal to P. अगर से ये लाइन और प्लेन की इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो उसमें से हमको किसकी वैल्यू मिलेगी? लैम्बडा की. फिर वो लैम्बडा की वैल्यू हम उसमें पुट अप करेंगे. सो हियर नाउ टू फाइंड द पॉइंट M, आपको क्या करना पड़ेगा? शॉर्ट में लिखना. तो पॉइंट M, this M is nothing but it is the point of intersection of line AM and the plane. So to find M you have to solve these two equation. कौन से इक्वेशन? R bar is equal to A bar plus lambda B bar और R bar dot n bar is equal to P. लाइन की इक्वेशन AM को और प्लेन की इक्वेशन R bar dot n bar is equal to P, ये दोनों को क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. तो सॉल्व करने के लिए CL now. So what we have done here for solving this one, put the value of R in the plane. प्लेन में रखो. A bar plus lambda B bar dot n bar is equal to P, है ना? तो इसमें से क्या मिलेगा? A bar dot n bar plus lambda times और ये B bar की जगह पे यहाँ पे अपने ये देखो AM bar is parallel to n bar. The equation of AM is line passing through one point and parallel to one vector. It's general formula B bar. But here AM bar is parallel to n bar. So in place of B bar there is a n bar is there. Again there is a n bar is there. And now here in place of B bar there is a n bar is there. ऐसा solve में. तो ये लाइन AM A में से पास है और इसका जो प्लेन का जो नॉर्मल था ये n बार, इसको क्या है? पैरेलल है. तो लाइन का फॉर्म क्या हो गया? एक पॉइंट में से पास और एक वेक्टर को क्या रहेगा? परपेंडिकुलर. तो लाइन का फॉर्म क्या हो गया? R bar is equal to A bar plus lambda times B bar की जगह n bar because n bar is vector is parallel to AM bar. ठीक है? So you can say clear. तो आगे जाएंगे. lambda times n bar dot n bar is equal to P. ये सबको पता है कि यहाँ पे lambda n bar dot n bar means magnitude of n bar का square. So यहाँ पे हम lambda की वैल्यू निकाल सकेंगे. lambda into magnitude of n square P minus A bar dot n bar. तो इस कारण से ये वैल्यू नजर आ रही है यहाँ पे. ऐसे है ना? So we can say that here therefore lambda is equal to lambda is equal to P minus A bar dot n bar divided by magnitude of n bar का square. So this is the bit ये लोग जो अभी join हुए उनके लिए bit का नाम है distance of a point from a plane. This is the last bit from the plane.
इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद रखेंगे, मगर कैसा आया डिराइव करके बता रहे हैं यहाँ पर। देयर इज नो नीड टू फाइंड दिस वन, बट इट इज फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग, इसे समझने के लिए है। नहीं भी याद रहा तो कोई बात नहीं, इसका डायरेक्ट फार्मूला भी याद है तो ठीक है, मगर समझ के लो। तो कोई भी एक पॉइंट है, एक इसका डिस्टेंस ये प्लेन से निकालने का है, दिस इज अ प्लेन। तो फॉर दैट पर्पस वी हैव ड्रॉ वन परपेंडिकुलर फ्रॉम दैट वन, नेम ऑफ द परपेंडिकुलर इज AM। ऐसा करने से ये जो लाइन है दिस वन, ये जो है दिस इज द लाइन AM। अब ये जो प्लेन है, ये प्लेन का जो है r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p, ये प्लेन का नॉर्मल मतलब ये होगा इसका n बार। तो ये जो परपेंडिकुलर AM है, मतलब ये जो लाइन AM है, ये AM n बार को क्या हो गया पैरेलल। ओके, AM is n बार इज पैरेलल टू n बार। इस कारण से ये लाइन AM की इक्वेशन निकाल सकते हैं अपन, क्योंकि ये लाइन AM एक पॉइंट में से पास है और एक वेक्टर को क्या है पैरेलल है। तो लाइन का फॉर्म क्या हो गया r बार इज इक्वल टू a बार प्लस एक्चुअल क्या आता b बार, बट हियर b बार की जगह पे किसको पैरेलल है n बार को, तो यहाँ पे क्या आ गया n बार। ओके, सबसे पहले am की इक्वेशन निकालें। उसके बाद ये जो पॉइंट m है, ये पॉइंट m ये दोनों के इंटरसेक्शन है। कौन से दो लाइन के इंटरसेक्शन, किसका इंटरसेक्शन है, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन am और ये प्लेन, ये दोनों का क्या है इंटरसेक्शन है। तो ये पॉइंट m को अगर से निकालने का है तो फाइंड the point M, we have to solve the equation of line AM and the plane r dot n bar is equal to p। तो ये क्या बने, to find M, M क्या है, it is the intersection of line and plane, line और plane का intersection point है। तो उसको अगर से निकालने का है तो ये line की इक्वेशन, मतलब ये AM की इक्वेशन और ये प्लेन की इक्वेशन, दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे r बार की वैल्यू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स n बार, ये प्लेन में रखो, a बार प्लस लैम्डा टाइम्स n बार डॉट n बार इज इक्वल टू p। सिंपली टेक द डॉट प्रोडक्ट, a बार डॉट n बार प्लस लैम्डा टाइम्स n बार डॉट n बार इज इक्वल टू p। सबको मालूम है n बार डॉट n बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर इज इक्वल टू p। सो हियर lambda times magnitude of n bar का square is equal to p, ये प्लस का है इधर जाके माइनस का, तो we got the value of lambda। Now this value of lambda we kept in that equation of line AM, so CN bar। ये देखो, इसको आगे रखने के बाद ये यदि हम इसके आगे रखेंगे तो put the value of lambda in AM, जब equation number 1 नाम दे देंगे इसको, so therefore 1 becomes, ऐसा भी बोल सकते हो, therefore 1 becomes 1 में रखने के बाद लाइन की इक्वेशन होगी r बार इज इक्वल टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स लैम्डा मतलब कितना पूरा p माइनस डॉट n बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर और ये डॉट n बार। ओके, इक्वल टू यहां तक कोई तकलीफ, और लैम्डा की वैल्यू निकाला अपन ने, और ये जो लैम्डा की वैल्यू है ये कैसे पुट अप कर दिया अपन ने लाइन की इक्वेशन में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में r बार इज इक्वल टू a बार की जगह a बार और ये लैम्डा के प्लेस पे पूरी वैल्यू इनटू n बार। अब बोलो ये am हो गया। अभी कभी अपन वेक्टर am बार निकालेंगे तो सबको मालूम है am बार मतलब क्या, पोजीशन वेक्टर ऑफ m माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a, सो दिस वन है ना वेक्टर am बार। ये तो लाइन की इक्वेशन आ गई am, वेक्टर am बार अगर से निकालेंगे अपन तो वेक्टर am बार मतलब सेकंड वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मींस पहला पोजीशन वेक्टर माइनस होगा, है ना ab बार के साथ। ab बार को क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ b माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a। उसी प्रकार से am बार का यदि सॉल्व करना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ m में से पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या करेंगे माइनस। जैसा कि हमको पता है पोजीशन वेक्टर ऑफ m जो है ये पूरा इतना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन और प्लेन का है, तो ये ऑब्वियसली m का भी कोऑर्डिनेट्स है, r बार की जगह पे ये पूरा a बार प्लस b बार माइनस a बार डॉट n बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर इनटू n बार और ये माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ b, सबको मालूम है a इज द कैपिटल A का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार। ओके, यहां तक कोई तकलीफ, यू नो कांसेप्ट का है। ये पड़ेगा लाइन am की इक्वेशन है ना। अब अपन ये निकालेंगे वेक्टर am बार, वेक्टर am बार निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ m में से पोजीशन वेक्टर ऑफ a क्या करेंगे माइनस। तो उस कारण से यहाँ पे ये नो
इस कारण से यहाँ पे n का पोजीशन वेक्टर मतलब लाइन और लाइन n जो है इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन। इसकी वजह से n के प्लेस पे ये लाइन का पोजीशन वेक्टर मतलब ये इसके कोऑर्डिनेट्स a बार प्लस b बार से इनटू n बार माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ a मतलब a का पोजीशन वेक्टर इज अ स्मॉल a बार। तो इस कारण से ये प्लस a बार और ये माइनस a बार कैंसिल। तो a बार वेक्टर a बार कितना है b बार माइनस a बार डॉट n बार सॉरी b बार माइनस a बार डॉट n बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर इनटू n बार। ये आया अपना am बार। It is our am bar, but we are interested to find out am bar vector am bar नहीं निकालना है। अपना इंटरेस्ट क्या में है लेंथ ऑफ am, a का डिस्टेंस प्लेन से कितना है मतलब अपने को निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब am निकालना है और ये वेक्टर am बार है। We are interested to find out am is nothing but ये वेक्टर am का मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर am बार। इसका क्वेश्चन मैग्नीट्यूड लेंगे तो मैग्नीट्यूड कैसा आएगा देखो अभी इसका मैग्नीट्यूड कैसा आ जाएगा p बार माइनस a बार डॉट n बार। इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ये ऑलरेडी मैग्नीट्यूड के फॉर्म में है मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर इनटू ये n बार का भी मैग्नीट्यूड मतलब इतना मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। सो ये दिस वन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार एंड वन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार गेट्स कैंसिल। As it is a magnitude or it is a length, it is always positive. So we can write here this of this type a bar dot n bar minus p upon magnitude of n bar. And this is the formula. है ना? Mod में length होने की वजह से it is always positive. p bar minus a bar dot n bar को हम a bar dot n bar minus p भी लिख सकते हैं. It is not a vector quantity. P is the length. Sorry, this is the length. This is the length. a bar dot n bar minus p upon magnitude of n bar। p में वेक्टर क्यों नहीं आएगा क्योंकि p डिस्टेंस है। डिस्टेंस मींस इट इज अ मैग्नीट्यूड इट इज अ स्केलर मैग्नीट्यूड और इसकी वजह से वेक्टर क्वांटिटी नहीं आएगी दिस वन। सो p minus a bar dot n bar minus p upon magnitude of n bar it is the distance or it is the formula to find the distance of the point from the given plane। ठीक है अभी ये देखो यहाँ नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर रिपीट करता है यहाँ से देखो क्या क्या किया अपन am पैरेलल था यहाँ पे छोटी फिगर अपने सामने एक ही मिनट में हो गया लास्ट बीट है इसलिए देख लो भी अच्छे से। अपना इंटरेस्ट है ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालेंगे इसलिए परपेंडिकुलर निकाले प्लेन का फॉर्म r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p। ये प्लेन का नॉर्मल है तो ये n बार इज अ नॉर्मल टू द प्लेन दिस वन। अभी जो ये प्लेन का वेक्टर n बार के क्या है पैरेलल है इसकी वजह से ये लाइन am की इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो ये लाइन am की इक्वेशन के लिए लाइन एक पॉइंट में से पास है और इसको पैरेलल है तो लाइन का फॉर्म इक्वेशन नंबर 1। अब ये जो पॉइंट m है ये am का और ये प्लेन का क्या है इंटरसेक्शन पॉइंट है। इसको अगर से निकालने का है तो लाइन की इक्वेशन और प्लेन की इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा इसमें से हमें आराम से लैम्डा मिलेगा। ओके पॉइंट m निकालने के बाद ये जो लैम्डा मिला ये फिर से इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे am मिल गया आपने को इट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन am। ओके नाउ am मिलने के बाद हमने क्या निकाला इसका वेक्टर am बार लाइन am निकालने के बाद वेक्टर am बार। तो वेक्टर am बार कैसा पोजीशन वेक्टर ऑफ m में से पोजीशन वेक्टर ऑफ a माइनस होगा। अब जैसे कि ये जो m है ये इंटरसेक्शन पॉइंट है लाइन का और प्लेन का इसका मतलब पॉइंट m दोनों के जो है लाइन से या प्लेन दोनों की इक्वेशंस क्या करेगा सैटिस्फाई करेगा। इस कारण से ये पोजीशन वेक्टर ऑफ m के जगह पे हम ये लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये लिखने के बाद ये ऐसा फॉर्म है देखो a बार प्लस p माइनस a बार डॉट n बार मैग्नीट्यूड ऑफ n बार का स्क्वायर डॉट n बार ये पूरा की पूरा रख दिया अपने m के जगह पे माइनस a का पोजीशन वेक्टर स्मॉल a बार। इस कारण से ये a बार और ये बार कैंसिल तो ये हमें मिला वेक्टर am बार। बट हमें वेक्टर am बार नहीं निकालना है तो हमें क्या निकालना है इसकी लेंथ ऑफ am मतलब am निकालना है सिर्फ वेक्टर am बार नहीं। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द am ओनली am लेंथ ऑफ am मतलब लेंथ ऑफ a
फ्रॉम दिस पॉइंट अ प्लेन। सो लेंथ निकालने के लिए, सिर्फ एम निकालने के लिए ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लो, मैग्नीट्यूड ऑफ एम बार। इसको लिखने के बाद ये देखो, इसका कैसे मैग्नीट्यूड लेंगे तो देखो ये दोनों का सेपरेट, इसका मैग्नीट्यूड सेपरेट p माइनस a बार डॉट n बार, ये तो ऑलरेडी है मैग्नीट्यूड दिस वन, और ये जो n बार बच गया इसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया, इसमें से एक कैंसिल हो गया, इसमें से एक कैंसिल हो गया। जैसे कि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, p माइनस a बार डॉट n बार लिखे क्या, या फिर अपने a बार डॉट n बार माइनस p लिखे क्या, और डिवाइडेड बाय क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ कितना बच गया, एक n बार। दिस ओके, this is the formula of distance of a point from a plane। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिया वाला है, इतना डिराइव करके शॉर्टकट में दिया वाला है, ये अपन ने पूरा डिराइव करके बताया कि ये फार्मूला आया कैसे। am is equal to mod of a bar dot n bar minus p upon mod n bar। So this is the formula। So you have to remember this formula। आया कैसा है डिराइव करके बताया। अब इसके क्वेश्चन देखेंगे अपन। सो क्वेश्चन पे जाने से पहले और बिफोर गोइंग टू दैट क्वेश्चन, सी लेता हूं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला याद होना चाहिए सबको। बोलो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन का फार्मूला बोलो, वेरी सिंपल वन, डी या फिर ए या बोलो फार्मूला, a बार डॉट n बार माइनस p डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, या फिर सबको भी मैग्नीट्यूड में मॉडल, ठीक है। तो फिर सेपरेट लिख देते भी चलेगा, a बार डॉट n बार माइनस p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। अब जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक में कैसा बताया इसका, d इज इक्वल टू a बार डॉट दिस वन वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, इट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर माइनस p। ये भी इसका फॉर्म है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर टेक्स्ट बुक में तो अलग दिया उसने, टेक्स्ट बुक में यही है, फिर उसने क्या किया है आपने, n बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार इज नथिंग बट इट इज यूनिट वेक्टर है ना। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मालूम है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो ये जो मैग्नीट्यूड ऑफ n बार है, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये होगा उसका यूनिट वेक्टर माइनस p। टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला दिया वाला, ठीक है। और अपन ये फॉर्मूला दोनों सेम है, इसके आगे का वर्जन एडवांस वर्जन मतलब ये। तो इन शॉर्ट ये फॉर्मूला डिराइव करने में d इज इक्वल टू mod of a bar dot n bar minus p upon magnitude of n bar। ये है, मगर कौन सा फॉर्म में है, इट इज द वेक्टर फॉर्म है ना, हर एक के दो फॉर्म है। अब अगर से कार्टेशियन फॉर्म में निकालने का है तो कार्टेशियन फॉर्म में कैसे निकालेंगे, सिर्फ इतना पता करेंगे कि ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से, ठीक है। और प्लेन की इक्वेशन क्या है आपके पास, ax plus by plus cz plus d equal to 0। कार्टेशियन फॉर्म में डिस्टेंस निकालना है तो उस समय, तो फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस ऑन द कार्टेशियन फॉर्म सेम फार्मूला है। सपोज दिस इज द am and distance nothing but d, so it is very simple one, you have taken mod same कैसा, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो अभी पॉइंट का x1 ax1 plus by1 plus cz1 और प्लेन का कांस्टेंट d as it is divided by under root of a square plus b square plus c square। So this is the formula in terms of Cartesian form, ठीक है। ये x1 plus एकदम सिंपल याद रखने के लिए, प्लेन का डायरेक्शन रेशियो, पॉइंट का डिस्टेंस, दिस वन। देखो a बार डॉट n बार मतलब वही, a बार डॉट n बार मतलब क्या है, a बार मतलब जिसमें से प्लेन पास है इसके कोऑर्डिनेट मतलब x1 y1 z1, डॉट n बार मतलब प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो a into x1 है ना, a into x1 मतलब ये प्लेन का नॉर्मल और लाइन का पासिंग थ्रू, a into x1 plus b into y1 ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट plus c into z1, और ये जो डिस्टेंस है माइनस p, तो यहाँ डिस्टेंस क्या है प्लस p अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। हमेशा बताया कि नॉर्मल वेक्टर n बार ये हमेशा कौन सा फॉर्म में रहता है, ai bj plus ck, मतलब ये जो प्लेन के a b c है ये किसके डायरेक्शन रेशियो है, n बार नॉर्मल वेक्टर के, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ n बार कितना आएगा,
अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला कार्टेशियन फॉर्म में और ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में याद रहना चाहिए, एकदम से दोनों भी। तो हमें इसके फॉर्मूला लिखेंगे वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म। तो पहला फॉर्म सर बोलो सर क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म वेक्टर सर दोनों फॉर्मूला। हाँ बोलो। यस सर वो जो टेक्स्ट बुक में फॉर्मूला दिया हुआ है वो एक बार डबल से एक्सप्लेन कीजिए। टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है? हाँ वही ना फॉर्मूला p माइनस नहीं सर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला है। एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। चलो ये फॉर्मूला की बात करते हैं, इसमें एक्सप्रेशन नहीं है तो फॉर्मूला क्या है? बस अपन जो डिराइव करेगा है d इज इक्वल टू फॉर्मूला नथिंग बट a बार डॉट n बार माइनस p डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, ये फॉर्मूला है। ये अपन डिराइव करने वाला है और टेक्स्ट बुक में जो दिया वाला है d या फिर अपन ऐसे नहीं डिराइव करते, अपन कैसे डिराइव करते हैं? तो अपन इसके फैमिली में लिखते हैं, अपन ऐसे डिराइव करते हैं p माइनस a बार डॉट n बार है ना डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार। अपना एक्चुअल ऐसा आया था, मगर अपन इसको मॉड होने की वजह से आगे पीछे किए थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मगर अब एज इट इज रखेंगे तो क्या होगा देखो, p इज इक्वल टू ये p दोनों को बांट के यहाँ पे p माइनस ये जो है वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है a बार डॉट n बार, इसको नॉर्मल वेक्टर में कन्वर्ट कर दिखा है a बार डॉट n बार इस फॉर्मूला। देखो यहाँ पे p जो खाली n बार रहा p डिवाइडेड बाय n बार n मैग्नीट्यूड आएगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये देखो p क्या है? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन। मैग्नीट्यूड ऑफ n बार क्या है? मैग्नीट्यूड है सेम है। ये तो मतलब ये भी जो है क्वांटिटी, ये भी कुछ नंबर डिवाइड बाय इज इक्वल टू 1 नंबर है ना, इसमें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। ये जो है तुम्हारा ये भी जो डिस्टेंस है और ये भी तुमको सॉल्व करने के बाद इसका मैग्नीट्यूड समझो डिस्टेंस 2 है और तुमने मैग्नीट्यूड निकाली 2/3, तो क्या फर्क पड़ रहा है इसमें? है ना, स्पीड पे थोड़ी करने वाला है, इसके दोनों साइड से मैग्नीट्यूड ऑफ n बार भी डिवाइड करें तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली होने वाला है, आएगा समझ में। यहाँ पे इसको कोई नो नीड टू फाइंड दैट वन, तुम्हारे दिमाग में ऐसा आना समझ गया मैं, ये माइनस रहने की वजह से ये मैग्नीट्यूड ऑफ n बार दोनों को जाना चाहिए, राइट है? राइट। क्लियर नाउ, बराबर है क्या? हाँ सर। यस हेलो, आवाज आ रहा है क्या? सर तीसरा और एक कोई वेरिएबल लेंगे ना अपन उसी जगह पे पीच कैसे ले सकते हैं? मतलब p बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार है ना, तो उसकी जगह फिर कोई आंसर रहेगा तो वो कुछ तीसरा रहेगा ना। कैसे रहेगा आंसर? आंसर तो यार डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम आने वाला ही है उसमें, फिर उसमें डायरेक्ट से देखो द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a ऑफ a बार फ्रॉम द प्लेन r बार डॉट n कैप्स, नॉर्मल फॉर्म में लिया ना उसने जो प्लेन लिया r बार डॉट n कैप्स इज इक्वल टू p के फॉर्म में लिया, आपने जो प्लेन लिए r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p ये फॉर्म में लिया। इस कारण से यहाँ पे दोनों में डिफरेंस है। ये फॉर्मूला याद रखो, उसमें बहुत कंफ्यूजन है, इसलिए मैं तुम्हारे को ये फॉर्मूला गिरा करके बताया। नॉर्मल फॉर्म में हमेशा प्लेन नॉर्मल फॉर्म में नहीं देता, प्लेन जो देता ई फॉर्म देता r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p। तो तुम अगर से ये आप क्वेश्चन में भी ये प्लेन दिया रहेगा तो इसमें ये फॉर्मूला में रखो 100% तुम्हारा आंसर आएगा। अब उसमें ये फॉर्मूला में देने के बाद उसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर उसके हिसाब से वो टेक्स्ट बुक में जो फॉर्मूला है वो डिराइव करो, वो हट जाएगा तुम्हारे लिए। इसलिए बेटर वे ये क्वेश्चन में प्लेन ये रहेगा r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p, तो अपन इसी के मेथड से फॉर्मूला डिराइव करने वाला है d इज इक्वल टू ये जो है p माइनस a बार डॉट n बार डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n बार, ये फॉर्मूला हमने डिराइव करे ये प्लेन के हिसाब से। टेक्स्ट बुक में प्लेन लिया उसने नॉर्मल फॉर्म में r बार डॉट n बार इज इक्वल टू p, इसका डिस्टेंस का फॉर्मूला उसने d इज इक्वल टू मॉड ऑफ p अलग करा फिर a बार डॉट n कैप्स दिस वन, इस प्रकार से उसने दिया है इसका मैग्नीट्यूड। इसको भी डिराइव करने के बाद ये आता
मगर थोड़ा हार्ड जाएगा, दूसरा कोई नहीं। इसको पहले तुमको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉर्मल फॉर्म में, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ये फार्मूले को। फिर उसके बाद ये इस पर, फिर इसको सॉल्व करके तुमको ये फार्मूला आएगा, कौन सा? टेक्स्ट बुक का। सो बेटर वे उसके टेक्स्ट बुक के नाम में मत जाओ, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, इससे तुम्हारा कोई भी इसका फार्मूला डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन एकदम 100% और एक्यूरेट निकलेगा। इस वन ये प्लेन r bar dot n bar is equal to p। टेक्स्ट बुक में साइंस फर्क ये है कि उसने वो नॉर्मल फॉर्म में बताया, टेक्स्ट बुक में जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है, और अपन ने जो ये प्लेन ये फॉर्म में है, r bar dot n bar is equal to p के फॉर्म में। ठीक है, ये आया कैसा सिर्फ परेशान करा, एग्जाम में सिर्फ फार्मूला याद रखने का आते हो बस, बाकी उसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर से कोई प्रॉब्लम है तो फिर अपन नॉर्मल से डिराइव करके बताएंगे इसको। ठीक है, तो अभी के लिए इतना याद रखो कि वेक्टर फॉर्म में जो d है, d is nothing but it is the distance, what is the formula? a bar dot n bar minus p, ये फॉर्मूला डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n bar। ये फॉर्मूला याद रखो, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, अभी तक ये यूज हुआ स्टैंडर्ड फॉर्मूला इसके, नॉर्मल के फॉर्म में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लेन क्वेश्चन तुमको हमेशा ये फॉर्म में रहेगा, प्लेन हमेशा ए फॉर्म में रहेगा, नॉर्मल के फॉर्म में नहीं रहेगा इस बार। तो देखो ये वेक्टर फॉर्म, इसका कार्टेशियन फॉर्म बोलो, कार्टेशियन फॉर्म क्या है इसका? कार्टेशियन फॉर्म इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द फार्मूला फॉर कार्टेशियन फॉर्म? d is equal to mod of ax1 plus by1 plus cz1 plus t divided by under root of a square plus b square plus c square। तो ये दो फार्मूले हैं इसके, ये फार्मूला याद रखो, सिंपल है याद रखने के लिए, है ना? सिंपल कैसा है देखो कि कोई भी एक प्लेन है और कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, तो ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से, तो ये हो गया, पूरा डिटेल नहीं, खाली बता रहा शॉर्टकट। और प्लेन क्या है? r bar dot n bar is equal to p, ये डिस्टेंस आवाज किती केलाय? पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड नॉर्मल प्लेन का दोनों का डॉट प्रोडक्ट a bar dot n bar में से इसका डिस्टेंस माइनस डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज अ मेथड टू रिमेंबर द फार्मूला इज हियर। कैसा रखेंगे? पासिंग थ्रू द पॉइंट, जहां से डिस्टेंस निकालने का उसका पासिंग थ्रू द पॉइंट, प्लेन का नॉर्मल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट में से ये p डिस्टेंस जो है प्लेन का माइनस डिवाइडेड बाय नॉर्मल वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज अ मेथड टू रिमेंबरिंग द फार्मूला हियर। और ये तो बहुत ही सिंपल, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं कार्टेशियन फॉर्म का। तो अब इसका एक क्वेश्चन देखेंगे अपन इसमें। सो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट आई थिंक देयर इज अ फोर्थ क्वेश्चन। सो चौथा क्वेश्चन देखेंगे अब यहाँ पे टेक्स्ट बुक का। तो चौथा क्वेश्चन में क्या पूछा? देखो प्लेन कौन से फॉर्म में, पॉइंट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, प्लेन कौन से फॉर्म में? r bar dot n bar is equal to p के फॉर्म में। तो फॉर्मूला क्या है इसका? तो कैसे निकालेंगे? देखो पॉइंट p एक ये देखो, इसकी फिगर एक्शन करते हैं ये, यस। तो इसका फिगर कैसे आ गया कि यहाँ पे पॉइंट p है, इसके पोजीशन वेक्टर हम लोग ये पॉइंट आपने क्या लिए लिए थे ना, ठीक है, ये दिया हुआ है 4i plus 3j, 4i plus 3j plus k is minus k। ये पॉइंट का डिस्टेंस ये प्लेन से निकालेंगे। अब प्लेन की इक्वेशन हमको दी हुई है r bar dot 2i plus 3j minus 6k is equal to 21। क्या कहता है? बोलो यहाँ पे क्या क्या फॉर्मूले में से रखेंगे। यहाँ पे जो a बार है इसका पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे a बार कितना है? a बार का पोजीशन वेक्टर ऑफ a, इसको थोड़ा साइड में ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे a बार इज इक्वल टू 4i minus 3j plus k, then afterward it is nothing but r bar dot n bar is equal to p। so what is n bar? नॉर्मल वेक्टर कितना हो गया? 2i plus 3j minus 6k, and what is p? p is equal to 21।
टाइम भी अभी से खत्म हो गया, तो इसके बाद अपन कंटिन्यू करेंगे अभी इसके बाद। सभी सडन ऑनलाइन लाइव सेशन में अगर टाइम भी खत्म हो तो अपन डायरेक्ट कंटिन्यू करेंगे, आज रिपीट खत्म कर देंगे अपना। तो p इज इक्वल टू कितना हो गया 21। सो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, वी नो दैट, यहाँ पे क्या स्टार्ट करेंगे अपन, यहाँ से फॉर्मूले की स्टार्ट करेंगे कि वी नो दैट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट A from the plate is, what is the formula, D is equal to mod of A bar dot minus n bar upon P magnitude of n bar। बस ये भी दोनों को मैग्नीट्यूड को अलग-अलग इसको रखो इसमें। तो ये कितना आ गया वो A bar dot n bar, ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट डायरेक्ट लूंगे, डायरेक्ट कितना आएगा 4 to the 8 minus 3 minus 9 then 1 minus 6 is the minus 6, ये हो गया A bar dot n bar minus P is nothing but 21 divided by magnitude of n bar, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया बोलो, अंडर रूट में 4 प्लस 9 36, इसका मैग्नीट्यूड 4 इनका वर्ग 4 9 प्लस 36, देन आफ्टर सॉल्व व्हाट यू गॉट हियर, व्हाट इज द आंसर, ये मॉड में बोलो कितना आ गया आंसर 8 minus 9 minus 1 minus 6 कितना आ गया -7 minus 28 -7 minus 21 minus 28 आ गया बराबर है, -1 -6 -1 आ गया अपॉन 7, इस बात एक इसमें ले सकते हैं, भी बताया ये कितना मिला बोलो 7 चौक 28 -4 बाहर निकालेंगे तो 4 units। Distance of the point from A is nothing but 4 units। Check your answer in exercise 6.4. Question number 4, आंसर कितना आ गया 4, यहाँ पे कितना उदाहरण 2 क्या है